हेलो। 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 आर यू वेटिंग? Yes, sir. आर यू गेटिंग माय वॉइस बच्चे? यस सर। ओके। बाकी कहाँ गए थे अभी तक? ओनली 5 स्टूडेंट्स हैव So in the last class we have discussed the cumulative distribution function, and in that there are 4 properties we have seen. What is CDF? CDF is basically the random variable. CDF is cumulative distribution function, and that is related with the probability. And what it means? The cumulative distribution function of a random variable x is the probability of getting this x which is less than or equal to x. The probability of getting this random variable x, so this random variable x should be less than or equal to x. So this is the statement of this cumulative distribution function fx. So this is the first property. इसका क्या मतलब हो गया? This is the cumulative distribution function of random variable x having value x which should be greater or equal to 0. Means what? इसकी probability जो है the cumulative distribution function ये greater or equal to 0 होनी चाहिए. ठीक है, ये तो obvious सी बात है क्योंकि ये this cumulative distribution function is related with the probability, ये probability, and we know the probability will be probability is in between 0 and 1. If getting an event is that means if there is failure of getting an event, then it is the probability is 0, and when probability of getting any event is certain, then it is 1. So यहाँ पे क्या है? probability of getting x which is greater equal to 0. इसका मतलब ये ठीक है, सही है. ये मतलब 0 से इक्वल और ग्रेटर ही होगा. सेकेंड वन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x which is less than or equal to infinity is 1 because it is true, so its value is 1. Probability of getting x less than or equal to minus infinity, less than or equal to minus infinity, तो माइनस इन्फिनिटी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती नहीं, और माइनस इन्फिनिटी से और लेस देन जाएंगे तो और इन्फिनिटी की तरफ ही चलते बढ़ेंगे, बढ़ते चलेंगे, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, तो इसलिए ये 0 है. फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा था यहाँ पे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो होता है वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. ठीक है, दैट मीन्स इफ वी वांट to find out there is a comparison between the two random variable x1 and x2. If x2 is greater or equal to x1, then the cumulative distribution function for x2 should be greater or equal to fx1. So this is the fourth statement. So this is important. सर इसके नोट से दीजिएगा आप. हाँ हाँ बच्चे, मैं आज भेज दूंगा, है ना, मैं आज भेज दूंगा इसको. ठीक है, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, आप लोग याद दिलाते मैं भेज देता. मैं कल कहीं बाहर था तो इसलिए मैं आपको भेज नहीं पाया. आज मैं आपको ये भेज दूंगा. ठीक है ना. तो these are the 4 properties of cumulative distribution function. तो ये मैंने आपको कल ये यहाँ पे इसका प्रूफ था जो कि आपने देखा था प्रीवियस क्लास में. तो इसको मैं भेज भी दूंगा, बाकी यदि दिक्कत होगा तो फिर से डिस्कस करेंगे. ये देखो, ये क्या था? ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था, ये क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था.
तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है ये क्या हम देख रहे हैं, दिस इज इन इम्पल्स, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ इम्पल्स सिग्नल, नहीं, whereas ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ स्टेप फंक्शन, स्टेप सिग्नल, ठीक है, दिस इज अ स्टेप सिग्नल। तो हम इस वी कैन राइट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एज वेल एज the cumulative distribution function as in the terms of this impulse function as well as step function, इसमें लिखा जा सकता है ना, जनरलाइज फॉर्म में आगे देखेंगे हम। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने यहाँ पे सेम डेल्टा एक्स प्लस ऐड करके देखा, वहां x1 x2 लिख रहे थे, यहाँ पे डेल्टा एक्स यूज करा। तो यहाँ पे देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड cumulative distribution function. The derivative of what? The cumulative distribution function. This is the derivative of cumulative distribution function, which is equal to the probability distribution function. तो ये this is also an important relation. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, जो ये है fx x, ये क्या है, cumulative distribution function। तो इसका डेरिवेटिव हम जब करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, दिस वन, ठीक है। और fx को यदि fx यहाँ से हम लिखें तो ये इंटीग्रेशन के टर्म में ये आ जाएगा आपका ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो fx फॉर रैंडम वेरिएबल x इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ fx x, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट वाला इक्वेशन जो था इसमें आप देख रहे थे, ये वाला, ये वाला जो था उसमें ये था। This is in terms of different integration and the upper one in the form of differentiation. तो जब cumulative distribution function ये इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो ये इन दोनों के टर्म्स में हमने देखा था लास्ट टाइम। ये क्या है, द समेशन, ये नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दिस इज आल्सो व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इसकी लिमिट है, और दिस इज px ऑफ रैंडम वेरिएबल x शुड बी इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एंड दोस सम शुड बी इक्वल टू 1। दिस इज व्हाट, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर द कर्व माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। So this is the representation for continuous signal, and in discrete signal we use summation term, नहीं, summation वहाँ यूज करते हैं डिस्क्रीट में, और इस यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज करते हैं। इसका इंटीग्रेशन का मतलब क्या, एरिया अंडर द लिमिट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट मीन्स फ्रॉम हेयर इट कम्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी एंड विल गो टू द प्लस इंफिनिटी। सो एरिया अंडर दिस कर्व for the probability density function should be equal to 1. So यहाँ पे ये एरिया x1 x2 का एरिया, यहाँ पे लिमिट x1 x2 को हम देख रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व x1 x2 फॉर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या हम देख रहे हैं, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, दिस इज नॉन नेगेटिव, बट दिस मे बी नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नेगेटिव हो सकते हैं, बट क्युमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब यहाँ पे देखो, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को लिखा है इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज योर फंक्शन एट x इज इक्वल टू x1। दिस इज प्रोबेबिलिटी एंड यूनिट स्टेप फंक्शन एट x इज इक्वल टू x2, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, और सिमिलरली यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन था उसको हमने लिखा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमने क्या देखा था यहाँ पे, कि वो यूनिट
इम्पल्स फंक्शन के टर्म में वहां पे हमने एक्सप्रेस किया था। तो सिमिलर वी हैव रिटन इट इन द इम्पल्स फंक्शन। Now Gaussian probability density function है, एक density distribution function named as Gaussian. So this is the expression for Gaussian distribution function. This is the probability density function for Gaussian. So this is 1 by root 2 pi e to the power minus x square by 2. This is the expression for Gaussian PDF. So यदि ये Gaussian distribution function के लिए power density function है, ये सॉरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो दिस इज क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ना। वहां भी हमने क्या देखा था, जो क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको यदि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में लिखना है तो क्या हम करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं जस्ट उसका। तो यहाँ पे वही दिखा रहा है। और सेकंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो है QY क्या दिखा रहा है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गॉसियन का है, दिस वन इज the Gaussian distribution function. This is Gaussian distribution function and this is here QY. तो अब QY को यदि हम लिखें तो इसका लिमिट क्या होगा, from y to infinity. So this is represented as y to infinity. This is y to infinity and this is the function. तो अब ये देखो, ये क्या सिमेट्रिकल फंक्शन है, दिस इज सिमेट्रिकल फंक्शन। इफ दिस इज QY, तो अब हम यहाँ से Q माइनस वाई यदि हम देखना चाहें तो ओवरऑल यहाँ से जो आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा अंडर द कर्व माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यदि इसकी लिमिट हो इंटीग्रेशन की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की, जो ये एरिया अंडर this curve should be 1. So if this is area under QY, so the area under this one from this one, तो area under this one यदि हम निकाल लें, area under QY यदि हमें पता रहे तो 1 माइनस ये हम कर दें QY, तो हमें क्या पता लग जाएगा, ये टोटल एरिया जो लेफ्ट पोर्शन का बचेगा। ठीक है, if this is the area under QY from y to infinity, ठीक है। तो अब हम यदि इधर का एरिया निकालना चाहें, ये फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू y, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस QY। नहीं, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा सा ऐसे ही बनता है बच्चे। तो ये टोटल एरिया 1 है और 1 में से हमने क्या करा, QY का एरिया ये माइनस कर दिया, तो ये टोटल एरिया इधर का बच जाएगा, लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन जो है उसका एरिया बचेगा। तो आज हम स्टैटिस्टिकल एवरेज ये हम देखेंगे, ये थोड़ा सा ब्रीफ में बस हम ऐसे ही चल रहे हैं। दिस इज यहाँ पे एक है एरर फंक्शन है, दिस इज ERF एक्सिस एरर फंक्शन एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो ERF C इज डिनोटेड एज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो यहाँ पे QX यदि ये है तो एरर कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन में क्या करें, 1 माइनस दिस वन करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन मतलब क्या, एरर फंक्शन जो होगा 1 माइनस दैट एरर फंक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। तो ये हमें आगे कुछ नहीं करना है। एक मिनट बच्चा, हेलो, हाँ सर, 10 पे फिर, हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, करा लेते हैं। बच्चे तैयार हैं, देख बच्चे से मैसेज करके देख लीजिए। मैं 10 बजे फ्री हूँ, यदि आप अभी फ्री है तो कर दीजिए, अदरवाइज मैं 10 बजे के बाद कर दूंगा।
अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 30, चलिए देख लेते हैं, दोनों का मैसेज डाल देंगे, यदि इफ दे आर इंटरेस्टेड दे कैन। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो। So this is the QI. QI is any QI is this one, as we have seen in the probability density function of Gaussian signal. This is area under QI. So this is QI, and if we write the error function for this one, so this is the complementary error function, and this is error in the terms of error function. So this is not much more relevant for our as per our syllabus. So we will not go through in detail. You can, if you want to go through that, I will send the detail of this document, and if you have any problem, we will discuss. So this is the power with different value of x, the function qx is given as. This is not significant for us. Next, we will start today statistical average. This is a joint probability, as we have seen earlier, previous joint distribution for two random variables, as we have seen earlier for single variables. ठीक है, सिंगल वेरिएबल्स के लिए हमने देखा था, अभी यहाँ पे डबल वेरिएबल एक्स वाई आ गया, तो आप इसको देख लेना, जरूरत पड़ेगा तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज फॉर सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल वी हैव सीन इट विथ सिंगल वेरिएबल previously. So main important part here is this statistical average. So statistical average मतलब क्या होता है बच्चे? मीन्स, जो मीन्स और वेरिएंस हम देखते हैं, तो मीन्स को हम लोग स्टैटिस्टिकल एवरेज के टर्म में इंडिकेट करते हैं। तो हमने यहाँ पे मीन और वेरिएंस में डिफरेंट जो वेरिएशन, डिफरेंट कंडीशंस जो है वो हमें चेक करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के इन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी, देखो हाइट, एवरेज हाइट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है यहाँ पे ये फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज मीन इसका क्या होगा वो देख रहे हैं। तो दिस इज n1 n2 n3, दिस इज पर्सन हाइट, n1 n2 and so on is person height, and x1 x2 x3 is the number। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज हम कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पर्सन मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट प्लस पर्सन मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट फॉर ऑल द पॉपुलेशन। ठीक है, ऑल द पॉपुलेशन, मान लो एक पर्सनल कोई घर में 5 सदस्य हैं और उसके हमें मीन निकालनी है। ठीक है, एवरेज हाइट, हाइट जो है एवरेज हाइट निकालना है या मीन हाइट निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? पर्सन मल्टीप्लाइड बाय इट्स हाइट, पर्सन मल्टीप्लाइड बाय हाइट सोन, जो 5 हैं मेंबर्स उनके हम ये मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय नंबर। तो ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? मीन। सो दिस इज मीन। तो यहाँ पे n क्या है? n इज समेशन ऑफ टोटल नंबर, n इज टोटल नंबर। So from here we can see that in place of n we okay,
तो अब यहाँ पे हम इसको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मीन इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n x1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय n x2 एंड सो ऑन. So this is what n1 by n. We have seen already in the last class. This is what fraction of this is n1 upon n, and it is relative frequency as you you can recall previous lecture. So ये relative frequency हम लोग देखते थे क्या, जो कोई एक प्रश्न मतलब एक इवेंट है, तो एक certain event by total number of event is the relative frequency. कोई एक certain event divided by all events or certain outcome divided by all outcome. This is the relative frequency. This is relative frequency. So these all are what? This is a relative frequency. And n tends to infinity. And वहाँ पे limit था, limit n tends to infinity, and n1 means certain event. Outcome of certain event is n1 and divided by total number of outcome. So this is indicated as relative frequency, and this is also what? Probability. नहीं, यहाँ पे क्या है, x1 के आने की probability. This is x2 का x2 probability. This is xn. तो relative frequency और probability क्या है, आपस में correlated है, जो कि हम पहले देख चुके हैं. So this is what? xi px xi. So in place of relative frequency we have written the probability. In place of relative frequency, that is n1 by n, this is what? Probability of x1, and this is function x1. This is x2, this is probability of x2, this is probability of n, and this is function xn. So this is the multiplication of probability, and this event. x1 height है, तो height की जो probability है, this is probability multiplied by height. तो यहाँ पे देखो क्या है, so the mean is equal to multiplication of this height multiplied by probability of getting height x1 and summation of all. So this is for discrete. नहीं, discrete जो सिग्नल होंगे उसके लिए यदि मीन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, summation of i1 to n xi and pxi for n variable x. ठीक है, so the mean value is called as average value or expected value. Random variable x and is denoted by ex. ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ex से. ex is mean of random variable x. This is mean height, mean of, यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, height देख रहे थे, mean height. This is mean height is equal to probability of getting x multiplied by that height and plus so on, जितने heights और probability होंगी उनका सबका summation. So this is ex and it is what? It is average value or mean value. ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ. हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. ये एक्सप्रेशन क्लियर है ना, मीन वाला. Yes, sir. This is only the sum of multiplication of probability and the height is average, average height or mean height. So this is for discrete function, and if you want to generalize it for continuous function, so this is integration under the limit infinity minus infinity to plus infinity. So this is for continuous function. ठीक है, तो continuous function के लिए यदि हम यहाँ पे हमें देखना तो minus infinity to plus infinity integration और x px. X integration is basically what? Area under the curve from minus infinity to plus infinity as limit shows here. This may be anything. बट यहाँ पे जनरलाइज फॉर्म में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यहाँ पे लिया गया है. सो अब यहाँ पे एक ये गॉसियन फंक्शन के लिए देख रहे हैं, फिर से गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है px x. तो ये इसका जनरलाइज
इक्वेशन है फॉर गॉसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आपको ये मतलब फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट इस पे पूछ सकता है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो हम यहाँ पे यदि इसका मीन हम निकालना चाहें, ये एक्स का बार इज व्हाट मीन, तो मीन हम निकालना चाहें तो क्या होगा, दिस इज 1 बाय, ये यहाँ पे हमारा जो देख रहे थे, हम क्या देख रहे थे फॉर्मूला में क्या था, x multiplied by probability. So this is probability. So replace px of random variable x with this expression, 1 by root 1 by sigma, or root over 2 pi is constant, so it is in outside, only the variable term will be inside. So this is the expression. अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफिकेशन में क्या मान लिया, x माइनस m को यहाँ पे y कंसीडर कर लिया इसने, ठीक है, x माइनस m को y कंसीडर किया, तो अब हमारा ये सारा टर्म चेंज होगा, x माइनस m इज y, सो dx इज व्हाट dy हो जाएगा यहाँ से, दिस इज dx is equal to dy from here because m is constant and m is here basically mean for Gaussian function. So this m is also constant, so dx is equal to dy. So change here dx by dy. After 10 minutes the meeting will end, so you have to join again. So in place of x, y plus m there, and in place of x minus m, this is y. So if we separate here, there are two terms. Okay. So देखो फर्स्ट वाला टर्म जो क्या है, ये आपका इंटीग्रेशन, दोनों इंटीग्रेशन है, इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो फाइनली यहाँ से m बाहर आएगा, ये टर्म जो है वो 0 होगा क्योंकि दिस इज एन ऑड फंक्शन ऑफ y, तो ये टर्म यहाँ से 0 होगा, और दिस इज इक्वल टू दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू दिस वन। सो आप यहाँ से इंटीग्रेशन इसका करना, ठीक है, तो ये ओवरऑल क्या यहाँ से आएगा, x कंप्लीमेंट, मतलब ये मीन जो होगा इक्वल टू m के बराबर आएगा। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का जो मीन होगा वो ये यहाँ पे शो कर रहा है। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो था वो आपने देखा उसका कैसा, ये दिस इज आल्सो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। At m, this is Gaussian distribution function related to m. This is mean value. Yeah. तो mean of a function of a random variable. अब यहाँ पे एक random variable x था, mean हमें अब क्या करना है कि random variable x हो और एक random variable y हो। There are two random variables x and y. So हम random variable x जो है इसमें और y दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है विथ दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू gx, ठीक है। तो अब रैंडम वेरिएबल मान लो डिफरेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं x1 x2 एंड xn विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन। अब y चूंकि ये है, तो अब जब हम इसको ब्रेक करेंगे दिस एक्सप्रेशन से, तो इन प्लेस ऑफ x वी विल, इन प्लेस ऑफ y वी विल राइट gx बिकॉज वी नो y इज इक्वल टू gx। यहाँ पे मतलब y और x दो रैंडम वेरिएबल्स थे, तो अब यहाँ रैंडम वेरिएबल y के टर्म में, y और x के टर्म में हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया इसका मीन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, दिस इज ये क्या है, रैंडम वेरिएबल y का मीन इन टर्म्स ऑफ रैंडम वेरिएबल ऑफ x। तो सिंपली यहाँ पे y और y की जगह हमने gx को पुट किया बस,
x1 x2 x3 y is equal to gx. So for continuous random variable, this is this summation term replaced by this integration function. So this is the mean for the two different random variable x and y. ये कुछ न्यूमेरिकल हैं, देखेंगे कभी कभी रहते हैं, देखेंगे कभी. अब sum of the mean of the sum, मतलब अब जैसे this is what, this is g1 xy g2 xy and so on and its mean, मतलब sum of mean of sum, ये क्या है, ये क्या कहलाएगा, mean. This is mean of summation of these function g1 g2 g3 and gn function. It will be equal to summation of mean of individual function. Point को देखो, mean of the sum, this is mean of the sum of the function g1 g2 g3 and so on. Mean of the function this one is equal to summation of the mean of function g1 g2 and this one. So ये आपका एक मतलब है कि यदि बहुत सारे फंक्शंस होंगे और उसका यदि मीन गिवन है तो उसको हम इंडिविजुअल मीन्स में लिख सकते हैं. ये एक इंफॉर्मेशन आपके लिए, ठीक है. तो इसका मतलब क्या, x प्लस वाई का यदि मीन है तो दैट विल बी इक्वल टू x मीन प्लस y मीन. सेम यही कंडीशन है यहाँ पे. तो दिस कैन बी रिटन फॉर सम मीन ऑफ सम. So now this is the mean of product of the two function. तो यहाँ पे क्या होगा, टू फंक्शंस हैं gxy और मतलब x और y दो रैंडम वेरिएबल्स हैं, उसमें हम देख रहे हैं कि मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन क्या होगा. तो gxy इज इक्वल टू g1 x g2 y. अब g1 x g2 y mean of these two function is equal to this one as we have seen in previous g1x g2y or this one. So if these two x and y variable are independent, then we can write as pxy is pxy for random variable x and y is written as the probability of x for random variable x, probability of getting y for random variable y. ठीक है, यहाँ इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो यहाँ हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो जॉइंट प्रोबेबिलिटी था उसको हम सेपरेट कर दिया. क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर म्यूचुअली दे आर इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव variables, random variables are there x and y, so we can separate it out. Pxy for random variable xy should be equal to random probability of random variable x having value x multiplied by probability of random variable y getting y. ठीक है, तो यहाँ पे अब ये फंक्शन को हम रिप्लेस करते हैं. ठीक है, इंडिविजुअली अब अलग सेपरेट कर देंगे g1 x एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x फॉर रैंडम वेरिएबल x मल्टीप्लाइड बाय दिस वन. तो ये क्या होगा, g1 x और दूसरा g2 y. सो यहाँ पे हमने क्या देखा, g1 x g2 y. क्या करते हैं? कुछ नहीं, आप खेलिए बच्चे, मैं आ रहा हूँ. तो यहाँ पे ये स्पेशल केस पर जब दोनों ये जो रैंडम वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट हो, तो उस केस में जो ये मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीन, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन जो होंगे वो इक्वल होंगे. मीन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल एक्स वाई इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ mean of the individual variable random variable. So this is the case when nth moment, that means x to the power m replaced by x is replaced by x to the power n. So this is nth moment. So यहाँ पे आउटकम क्या आ रहा है, nth central
this x and x minus x mean. So this x is replaced by x minus xn. That means this is x for x complement, x mean. The nth central moment of random variable x is defined as this one. This is moment. ये आपका क्या है? Sigma is standard deviation. The second central moment of the sigma square. Sigma square is your random. Sigma is your standard deviation, and sigma square is variance. So variance x is equal to the mean square value minus square of the mean and mean square value. इन दोनों का माइनस है, ये क्या होगा? दिस इज कॉल्ड एज वेरिएंस. तो यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन कुछ गिवन है. फाइंड द मीन स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ गॉसियन रैंडम वेरिएबल with probability density function in equation this one. ये एग्जांपल है, बाद में देखते हैं. तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ ए सम ऑफ